वीडियो के एंड में मैं आप सबको एक प्रो टिप दूंगी विच नोबडी इजली गोना टेल यू, सो इट विल चेंज द वे यू आर मेकिंग योर सीवी एंड इट विल मेक योर सीवी better than anybody else. Hello everyone, hope you all are doing great and keeping yourself healthy. I am going to give you a CV tip which will help you in getting selected into Amazon, Google, Microsoft and in the companies which you are applying for. Guys, do you know impactful CV plays a very vital role of your chances of getting shortlisted into those companies. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि the keywords which we are using in the CV is getting assessed by the companies, and on the basis of those keywords you have a chance of getting calls from those big companies or the companies which you guys are applying for. इस वीडियो में मैं आप सबसे ये शेयर करूंगी कि स्टार्ट से फिनिश तक आपका क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए CV बनाने का, because it is a really difficult process and you have to go through a lot of iterations. For those who do not know me, my name is Anshika Singh and I work as a program manager in Amazon, and I recently have completed my MBA from NITI Mumbai. I make videos on MBA, everything related to MBA, and I have recently joined Amazon. So after joining Amazon, this is the very first video which I am making for all of you guys. Before moving ahead to the video, let's give a shout out to the sponsor of this video, which is College Vidya. If you are confused between which college to choose, to go for online MBA or distance MBA because of your personal reasons or according to your suitability, then College Vidya is one-stop solution for all of you guys. So College Vidya is an online website which helps you in comparing different colleges according to your interest areas. Let's suppose you are confused between A and B colleges, then you can put on your interest, and on basis of your interest it will filter it out and show the comparison between the colleges. College Vidya has 75 plus universities registered over there, so it is a authentic website, and इसके बारे में मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में भी बताया है। को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको आना है कॉलेज विद। लेट्स सपोज मुझे MBA कोर्स के लिए देखना है, तो मैं MBA पे क्लिक करूंगी। आप वर्किंग हो या नहीं, आप कितने आवर्स डेडिकेट करना चाहते हो, आपका बजट कितना है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कौन सी मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करती है, ये सारी चीज़ें, आप फीस को अपनी EMIs में देना चाहते हो या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन लास्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये आपको कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे आपके कॉलेजेस की लिस्ट इन्होंने दे दिया है, बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है, एंड इफ यू गाइज आर गोइंग टू यूज द लिंक विच आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देन यू आर गोइंग टू गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ ₹6,999 in your job assistance. Additional benefits other than this is, फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट अ डेडिकेटेड काउंसलर जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। सेकेंड, यू विल बी सेव फ्रॉम फ्रॉड वेबसाइट्स। देयर आर टू मेनी फ्रॉड वेबसाइट्स, सो दे विल सेव यू बाय डायरेक्टली लैंडिंग you to the official website of the college you guys are applying for. The third thing is you can pay your fees in an installment. Fourth thing is your learning. You will be added in a community where you will get to know what all your peers are doing. Yes, do not forget, if you are going through the link mentioned in the description box, then you are going to get additional discount of ₹6,999 for your job assist. So guys, without any further ado, let's get started. First point, you have to build your own story. हमारे पास टाइम कम होता है when we go into an MBA college. Even if you are working anywhere, major constraint which everyone has is the time. एंड वो हड़बड़ी में क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट अपना CV पॉइंटर्स बनाने लग जाते हैं, डायरेक्टली जंप कर जाते हैं CV बनाने में। सो पहली चीज़ हमें ये करनी है कि स्कूलिंग टाइम से लेकर के अभी के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें की है, और उसको बिल्कुल स्टोरी टाइप से लिखो। क्योंकि क्या होता है, व्हेन वी राइट इन अ स्टोरी फॉर्म वी कैच अ माइन्यूट डिटेल। इससे आगे मैं आपको और सारे पॉइंट्स बताऊँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि CV आपका 1 या 2 दिन में नहीं बनने वाला है। यू हैव टू डिवोट at least a week to make a very impactful CV. So keep that in your mind. और अगर एक बार आपका CV बहुत ही अच्छी तरह से well defined बन जाता है, then you don't know the potential of it getting selected into top companies or the companies which you are applying for.
Now the second thing is make a master CV. So master CV will be a refined version of what you have written in your whole story. You have to divide your section, like you can make your master CV in 5 pager or 6 pager. So you should define the sections of it. Section should be achievement, one academics, one hobbies, one certifications. Like these you have to segregate those sections. अपनी जो अपनी स्टोरी में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, कौन सी चीजें कौन से सेक्शन में बेस्ट फिट हो रही है, आप उन पॉइंटर्स को वहां पे डाल दो. वाइल डूइंग दिस यू नीड टू टेक केयर ऑफ हमने जो सबसे रीसेंट किया हुआ है, ऑलवेज कीप दैट इन टॉप. और जैसे जैसे हमारे पास्ट ईयर के अचीवमेंट्स और अकेडमिक्स है, आप उनको नीचे के पॉइंटर्स में लिखोगे. नाउ द थर्ड स्टेप. तो अभी तक आपने अपनी स्टोरी बना ली, आपने अपना मास्टर सीवी भी बना लिया. अब आपको करना ये है कि आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वहां पे आपको स्टार अप्रोच लगाना है. सो गाइज, व्हाट इज स्टार अप्रोच? स्टार अप्रोच इज अ सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. तो एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन रही थी, उस सिचुएशन में क्या टास्क आपको दिया गया था. ए फॉर एक्शन, एक्शन में आपने क्या क्या एक्चुअली किया अपनी तरफ से. एंड आर फॉर रिजल्ट, और ओवरऑल रिजल्ट क्या था. वट एवर स्टेटमेंट you guys are mentioning in your CV, you have to write it in a way like it follow a structure. First situation comes, then task, then action, and then result. benefit आपको ये होगा कि बहुत सारे keywords आपके utilize होंगे one pointer में, and it will be very easy to understandable by the interviewer. और जिस भी कंपनी में आप अपनी प्रोफाइल भेज रहे हो, तो it will look very good and give a very huge impact on what actually you have did. आपने जो पूरी एक स्टोरी बनाई रहती है, फिर उसको आपने शॉर्टन अप किया मास्टर सीवी में. सो उसके बाद भी हमें अपने सीवी को फाइनली आवर गोल इज टू मेक 1 पेजर सीवी. सो वहाँ से भी हम शॉर्ट करेंगे, और जो भी हमारे 2-3 लाइन के सेंटेंसेस हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि वो हमारे 1 लाइन में ही फिट हो जाए. सो दैट्स द होल एम. सो दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस. नाउ द फोर्थ थिंग is removing your duplicates. So guys, make sure कि आपके कोई भी चीज़ ना बार बार नहीं आ रही हो. लाइक आपने अकेडमिक अचीवमेंट में कुछ दिखाया, फिर अगेन आप उसको अपने अचीवमेंट में दिखा रहे हो. सो ट्राई टू रिमूव दैट. आप सिर्फ और सिर्फ उसको अकेडमिक में दिखाओ अगर वो अकेडमिक है, या एक्स्ट्रा करिकुलम है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी दिखाओ. सी, आई अंडरस्टैंड इनिशियली व्हेन यू गाइज विल बी मेकिंग सीवी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यू डोंट हैव मच ऑफ डेटा, और आपने कुछ एज सच कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं है, तो व्हाट टू राइट ऑन अकेडमिक अचीवमेंट. सो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे सकती हूँ कि क्या आपके अचीवमेंट्स में काउंट होंगे. लाइक there was a bridge making competition using popsicle sticks in our college when I was in my graduation. So our team scored first position into that competition. So इवन दिस इज अ अचीवमेंट. अगर ऐसा भी आपने कभी स्कूल में किया हो, अपने कॉलेज में किया हो, अपने लाइफ में कोई नेशनल विनर रहे हो या रनर अप भी रहे हो, यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स. एंड इवन इसके बाद भी इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, सो आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू सी कि दूसरे लोगों ने क्या लिखा है. ट्राई टू फिल्टर आउट फ्रॉम गूगल कि और क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. यू हैव टाइम, और आप कुछ नया स्किल सीखना चाहते हो, तो स्टार्ट डूइंग इट एंड राइट इट डाउन ऑन योर सीवी एंड कीप डूइंग दैट थिंग साइड बाय साइड, सो दैट जब आपकी इंटरव्यू का टाइम आए, यू शुड हैव अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर सीवी. फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज प्रायोरिटाइजिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सपोज यू आर अ पर्सन हैविंग अ वर्क एक्स. सो आपने बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने करियर में करी होंगी, तो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी वॉट इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल पॉइंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बिग अचीवमेंट कह लो, या फिर टफेस्ट रोल जो आपने किया है अपने, वो सबसे ऊपर लिखना चाहिए. वेन एवर वी मेक सीवीज, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको उसको बोल्ड कर देना चाहिए, या फिर थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आप इटैलिक कर दो या बोल्ड कर दो. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट. सो सपोज यू आर अ नेशनल विनर, 1 point you have this, and the second point you have ranked 1 among 1000 students. इन दोनों पॉइंट में जो important point होगा, that will be the first one, because you have represented yourself nationally. Guys, prioritize your pointers. These are the 5 pointers which is very much important, and when you are going to follow these 5 steps,
आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आप जिस भी कंपनी से अप्लाई कर रहे हो वहाँ से कॉल आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। नाउ इट्स द टाइम फॉर द प्रो टिप विच आई हैव मेंशन्ड in beginning of the video. So that pro tip is, whenever you are making any points, use powerful verbs. So now you'll be asking what powerful verb is, so you can google it. Power verbs के आपको बहुत जगह पे pdfs भी मिल जाए। Who want to know what power verbs are, क्या क्या power verbs होते हैं, you can email me, I'll give you the pdf words होते हैं, किन किन actions के अंडर आते हैं। तो just email me, drop me an email, I'll send you the doc. So do not miss a chance to make your CV looks more impactful, guys. So drop me an email. So guys, that's all in this video. Hope you have liked the video, and if you have liked the video, then please press the bell icon below, and please do not forget to hit the like button. Till then, take care, bye bye, and keep rocking it, guys.